So, Tushar, what was the moment that made you say, I'm meant to build something bigger than a job? That moment was my accident. Accident? Yeah, I had an incident which was in 2010, and I was on bed rest for many months, and that was the time I realized that I'm getting comfortable in my job and this is not meant for me, and wherever there's comfort I move out. So that was the tipping point कि अब नहीं करना कुछ, अब अपना करना है. Hey guys, welcome to Strangers to Friend podcast. This is Saksham Narad, This is Babu Joshi. and today the guest is Mr. Tushar Mittal. He is a co-founder of My Soho Cowork and he is a host to 02X podcast. Today, I specifically learned that you need to know when to move, when to pivot, because we often become comfortable in life and we stick there. But when you get comfortable, you need to learn that you have to move now. And the major learning I got this from this podcast was you need to experiment a lot and you need to experiment और जब तब तक करो तब तक रिस्क लो तब जब तक कि तुम्हारा ब्रेन और तुम्हारा दिल एक डिसीजन पे एग्री ना करे और जब वो एग्री करता है दैट मीन्स यू आर पैशनेट अबाउट इट एंड दैट्स योर विजन. And a few things that we think that you will take from this episode is consistency and why it is important. Passive income, why passive income is important. What are the traits of some high achievers and top achievers in any spaces out there? Why networking is important, why learning more is important, why co-working is important. And why not to work from home. This is Tushar Mittal, turning stranger to a friend. Back to the episode. Okay, so if you are okay with it कि accident कैसे मतलब थोड़ा उसमें आप brief करना चाहो. We were friends in Kasoli, Okay. and I slipped or jumped. It's a mixed equation. किसी को दोनों में से कुछ भी लगता है. So it was an incident, Okay. obviously unknown. So I landed on the ground with never realized with a broken ankle, broken shin, broken leg, broken wrist, and उसके बाद multiple surgeries, multiple times hospital, many operations. उसके बाद बस घर पे बैठ के दिमाग चलने लग गया. What not to do, what to do. So that is the time I said कि I need to explore what I can do. Obviously, I didn't have any family business, which I wanted to go ahead and get enrolled in. But अपना कुछ plan करना था, तो सोचना शुरू किया वहाँ से. Okay. How TM, aka Tushar Mittal, became who he is today. Like if your life till now is a movie, how would you give our audience the context of whatever happened till now? Oh, I don't think I have achieved what I really want to, but I think I have overachieved what I never felt I would. So there's zero regrets and completely happy. जो हम imagine करते हैं ना कि आज हम किस position पे हैं, वो and कल के लिए कुछ imagine करते हैं कि कल कहाँ होंगे. So I think I have been through that journey, and whatever every passing few months I look back and some वो चीजें लगती है ना, कुछ चीजें पहले ड्रीम थी आज वो रियलिटी हैं. बट ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी ना, व्हाट नेक्स्ट. सो वी कीप पुशिंग अप माइलस्टोन्स अहेड. तो zero regrets. I have chilled all my life. I have been able to socialize freely. I've been able to take out time for everything, चाहे वो travel हो, family हो. So I think मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, I have a perfect work-life balance. Do you think मतलब जो आपका इंसिडेंट हुआ, those things in life give you clarity in what you want and what you don't want? Clarity and confusion both. क्योंकि clarity तो मिल जाती कि ये नहीं करना, confusion ही होती है अब करना क्या है. So it's a good position to be in, because अगर आपका दिमाग चलता रहे ना कि how to solve the next move, so that is where probably growth happens. अगर हम एक ही चीज repetitively करते रहें तो we just become boring, right? So the zero regret policy, when you realized कि आज के बाद मैं कोई regrets नहीं रखूंगा अपनी लाइफ में, I'll try each and everything, I'll explore each and everything. There was a time, ऐसा कोई moment था आपका? देखो, ऐसा नहीं है कि रिग्रेट नहीं होते, बट रिग्रेट को
वो उतना नहीं दिमाग पे लिया कि अपने आप को पुल डाउन किया, ओके। रिग्रेट से लर्न किया, हम्म। ठीक है, दिस नो रिमोर्स। मतलब आज इफ आई लुक बैक, यू नो, कहते हैं ना, इफ व्हेन यू आर ऑन योर डेथ बेड, तो आपके दिमाग में आता है यार ये करके देखना चाहिए था, ये पंगा क्यों नहीं लिया। वो ओके। वो नहीं है दिल में बात की यार, आई विल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो यस, जो जो करना चाहता हूँ वो मैं कर चुका हूँ, जो जो और करना चाहता हूँ वो मैं जरूर करूंगा। ओके, तो 2010 वो एक्सीडेंट के टाइम आई गेस कि आपको रियलाइज हुआ होगा, लाइक आई शुड No, टेक I रिस्क्स। don't think I just developed any superpower then. ओके। It was already there. You just need sometimes a little jerk in your life to take that chance. हाँ, वेकअप कॉल। हाँ, तो बस आई डोंट थिंक कि वो एक मोमेंट था, एंड उस मोमेंट को मैंने ना बहुत ज्यादा वो नहीं किया कि करूँ बट ना करूँ। आई हाँ डोंट हाँ। टेक टाइम मेकिंग डिसीजंस। हम्म। करना है तो इट्स अ यस, I'll take that risk. हम्म। I have taken that risk, so I'll enjoy the results. ओके। If I don't get success, I'll get experience. एक्सपीरियंस, राइट। एक्चुअली आई वाज आस्किंग, मतलब इसके पीछे का रीज़न ये था क्यों मेरा जो मोमेंट था वो इट वाज कि मैं स्कूल में मैंने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया। तो इट वाज कॉलेज फर्स्ट डे वेयर आई रियलाइज कि यार स्कूल लाइफ में मुझे कुछ याद ही नहीं मैंने क्या किया। ना अच्छे मतलब पढ़ते रह गए, मार्क्स भी नहीं आए, ना सोशलाइज किया, ना अपने आप को एक्सप्लोर किया, ना कंफर्ट जोन से बाहर आए। तो एक मेरा कॉलेज टाइम था ऐसा कि जब कॉलेज का फर्स्ट डे था, आई एम फ्रॉम लुधियाना ओनली। तो आई जस्ट रियलाइज कि मैं अब आज से रिग्रेट्स नहीं रखूंगा, लाइक आई टेक रिस्क। ऑफ कोर्स हारेंगे तो एक्सपीरियंस है, जीतेंगे तो ऑफ कोर्स आई विल गेट द रिवॉर्ड। तो ये मेरा मतलब स्टोरी था। तो आई थॉट कि ऐसा स्टोरी आपके साथ मे बी वो होगा। I think one thing I was very clear, जब हम स्कूल में थे ना, और आज भी कोई भी स्कूल में होता है, IIT IIM की जरूर बात होती है, एंड दैट इज समथिंग कि यार इस मुकाम पे पहुंचना है। बट पता है कि कितनी कितना दिमाग है, ठीक है, और कर सकते कि नहीं कर सकते, वो आई थिंक वो क्लैरिटी थी। ओके। तो मैंने कभी उस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लिया, उसकी परवाह नहीं की कि, बट इतना ज़रूर था कि ओके, जो लोग IIT IIM में जा रहे हैं एंड देन दे आर probably have more chances of creating a better career out of their life. So whatever they achieve, how can I overachieve that? तो रास्ता डिफरेंट होगा, मेहनत डिफरेंट होगी, so but it is doable. When we were learning about you and MySo, we first of all loved the idea and the whole vision behind it. We would love our audience to know what was the light bulb moment that you decided I have to do this. About MySoho, so MySoho originally was never conceptualized to be a co-working office. Okay. It was built to be a skill studio. We were on an alternative कि जैसे co-working आपको ऑफिस स्पेस देता है, बट एक स्किल स्टूडियो, जैसे आज आप एक पॉडकास्ट कर रहे हो एक बोर्ड रूम मीटिंग रूम में, तो सपोज एक ऐसा स्टूडियो जहाँ पे शेयर्ड वर्क स्पेस हो, नॉट फॉर ऑफिस पर्पसेस बट फॉर स्किल एंड टैलेंट। तो जस्ट इमेजिन अ स्टूडियो वे यू कैन रेंट अ डांस हॉल, probably rent a music jamming studio, probably have a yoga center, have a podcast, have people come in for short visits. जो लोग अपने घर से कर रहे हैं काम, या अपने घर पे ट्यूशन दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, सो इट वाज प्राइमरली अ कोचिंग ट्रेनिंग स्किल, वो हमने, दैट इज हाउ माई सोहो वाज कंसेप्चुलाइज्ड। इट बिगैन लाइक दैट ऑल्सो। वी वर when we began, it was जब हमने लॉन्च किया अपना ऑफिस, ये ऑफिस नहीं, अब तो ऑफिस बोलने की हालत पड़ गई है, जब हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया, it was February of 2020, and March में we were hit with COVID. So COVID आया, 3.5 या 4 months we were closed. मिड जुलाई में हमने, वो थोड़ी सी परमिशंस मिलती थी ना कि ये 12 बजे तक, 2 बजे तक 2 खोल बजे देती तक, है, फिर हाँ। 4 बजे तक ऑफिस खोल लो, तो वो खोलना शुरू किया, जाके बैठ जाते थे कुछ। अब ये जितने जैसे जिम्स थे, पब्लिक मीटिंग स्पेसेस थे, वो तो बैंड थे टू बी ओपन, देयर वर रिस्ट्रिक्शंस। तो अब हमने रेंट तो देना है, बिल्कुल। सैलरीज भी देनी है, 6 months हो गए हैं, वी वर pumping money out of our own pocket. We already had pumped money to build the company, the interiors, everything. So we pivoted
our entire model into an office space because offices were allowed to open, and that is then. So that decision is what we are here today. आइडिया के साथ इतना रोमांटिसाइज होना भी मतलब व्हेन बिजनेस थिंग्स कम इन तो आपको आइडिया अपना रोमांटिसाइज करते रहो कि यार मैं तो ये बिल्ड करना था, बट यू हैव टू चेंज थिंग्स According to time. according to time and Absolutely. situations, right? देखो, it is good to be emotional about business, but you should know when to stop, because if you have other means of income, then enjoy that emotion. ठीक है, then those losses are not losses; those are experiences. But if your business is your bread and butter for you, for the people who are contributing, who are your employees, your colleagues, then you can't get emotional. You have to deliver for yourself, for that company. What is the time when one should realize that maybe I have been emotional about this business for too long now? देखो यार, वो इमोशनल होना मतलब अगेन, आप योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ए क्लियर रिफ्लेक्शन कि आप जितना एफर्ट डाल रहे हो, उस एफर्ट का ऑल्टरनेट आप एफर्ट कहीं और डालते तो क्या मिलता, उसको जरूर कंपेयर करना चाहिए. अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया कंपनी में, तो बैठे बैठे 8-10% एफडी में अगर आता है, या 1% के रिटर्न आप मार्केट में निकाल लेते हो, या उससे ज्यादा, विदाउट डूइंग एफर्ट, विदाउट डूइंग एनी एफर्ट, जीरो एफर्ट पे अगर आप 12% साल का कमा रहे हो, तो एफर्ट डाल के अगर उससे कम है, देन इट्स स्टुपिडिटी. Great metric. हाँ, ये है. Why you think कि we should, like all the solopreneurs, all the small entrepreneurs and agency founders, all the मतलब जिनकी छोटी टीम है, micro scale businesses should work at co-workings rather than home? Like what were your top reasoning for that? देखो, घर से तो बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए. Okay. कंप्लीटली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ. आपने कुछ अपना स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, एंड यू आर हैविंग सम ओवर टाइम, तो आप घर से ज़रूर करो, बिकॉज दैट इज़ वेयर यू लिव. बट योर लिविंग स्पेस शुड नॉट बी अ वर्क स्पेस, बिकॉज आप जिस तरह के भी आप प्रोडक्ट हो, आपने चाहे कोडिंग करनी है, कुछ भी करनी है, when you go to an office, especially co-working office, क्योंकि रेगुलर ऑफिस में सिर्फ आपकी टीम बैठी है, यू आर इन एन इनक्लोज्ड एनवायरनमेंट, आपकी टीम बैठी है. को-वर्किंग ऑफिस में देयर आर 10-20 मोर ऑफिसेस इनसाइड, उनकी टीम्स बैठी है. यू लर्न सो मच व्हेन यू मीट पीपल, यू अननोइंगली डेवलप अ नेटवर्क. आपको दूसरों के स्किल्स, हैबिट्स समझ आते हैं, आपको ट्रेंड्स पता चलते हैं, आपको अपने बारे में लर्निंग आती है, एंड प्लस इट्स नॉट बोरिंग ऑल्सो. सो आई थिंक एनी successful entrepreneur is one who has built, actually not 100%, but many, or maybe 95%, I'm just throwing a random figure, but majority of successful entrepreneurs have built businesses when they network. और जो डीप वर्क होता है, लाइक पूरा फोकस वाला, वहाँ पर ऐसे वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ एनवायरनमेंट ज़्यादा ब्रीद नहीं करता, क्योंकि देयर इज़ नो वन टू टैप ऑन योर शोल्डर एंड आस्क फॉर डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो जाती है जब आप एक ऑफिस स्पेस में हो या फिर उसमें हो. बट जब आप अकेले काम कर रहे हो, तो आई थिंक वो डीप वर्क, और मतलब आई वर्क फ्रॉम होम, तो मेरे लिए वो होता है कि मेरे को डीप वर्क मिलता है. बट या दैट्स समथिंग आई रियलाइज कि मैं नेटवर्किंग वाली साइड पे आई लैक. तो बट जब डीप वर्क करना है, जो काम करना है, जो बिल्ड करना है, जो क्रिएटिव आइडियोलॉजी, स्ट्रैटेजीज बनानी है, वो सारा मेरे को लगता है डीप वर्क सोलेस में होता है ज़्यादा. I completely agree with your point. That is the reason, picking a co-working office makes so much sense. Because आपने अपना ऑफिस नहीं लिया, आपने अपने फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ाए. Co-working ऑफिस में you have the flexibility and liberty. आप हाइब्रिड वर्क कर सकते हो. आपको जब अपने सोलस में काम करना है, आपको जब privacy चाहिए, आपको फोकस चाहिए, आपको you really want to get deep dive into work, you have that opportunity. And you still also have an office which is not heavily loaded on your pocket, which you can go to, exchange thoughts, ideas, exchange notes. So I don't think it can get better. आई फील कि अभी यहाँ पे भी लाइक हम जिस कोवर्किंग में हैं वहाँ पे भी हमने देखा है कि बहुत लोग ऐसे हैं कि इंक्लूडिंग मी ऑल्सो कि वी हैव एन मतलब आई तो सिट इन ओपन स्पेस बिकॉज आई लव टू नेटवर्क, आई लव टू टॉक टू पीपल एंड लर्न अ लॉट. सो आई हैव सीन सम गाइज कि जो एक ऑफिस है छोटा सा, उसमें उन्होंने वो ऑफिस लिया हुआ है, एंड जो डीप वर्क वाली बात है, दे आर डूइंग देयर वर्क सब कुछ करके
when they are free कि आप मीटिंग से फ्री हो, आई हैव हाफ एन आवर, फिर दे कम आउटसाइड एंड दे टॉक, दे मीट, फिर हम लंच पे अगर इकट्ठे जा रहे हैं या ऐसे कुछ. तो आई थिंक दैट्स द पावर ऑफ को वर्किंग कि वेयर यू गेट टू नो ईच एंड एवरी अदर एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव्स एंड नेटवर्क अलॉट. तो आई हैव मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ फ्रॉम पास्ट 2 years एंड आई एम रियली हैप्पी हियर. सो तुषार, जस्ट टेल मी कि वाई को वर्किंग तो लाइक इट्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हर किसी को चाहिए ही है. Why businesses need MySoho? Like how MySoho is different from any another co-working? My Soho is not different. Okay, it's not different. My Soho is not different. My Soho is another brand Hmm. of co-working, Hmm. like many other brands. Hmm. What makes My Soho different is the team which has built My Soho, because they are a vision-driven company. Their idea was कि ठीक है, whatever failures we have seen, we will keep building. We will. हमें ना ये बहुत इम्पोर्टेंटली फील होता है कि Tier 2 में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है. प्लस वी आर नॉट अ फैमिली रन बिजनेस. तो ऐसा नहीं है कि हम अपने पास, हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस पड़ी थी तो हमने अपने उसका ऑफिस बना Office दिया. बना दिया. वी पुट इन द मैथ्स. अगर हम वो ना करते तो ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं थी. Hmm. 1 या 2 ऑफिस में रह जाते. आज वी आर टॉकिंग अबाउट 10+ टाउन्स, नियरली 30 ऑफिसेस, Offices. जिसमें से कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है. Hmm. So we are looking at, scaling to entire India and Tier 2 towns. And scale is only possible with vision, Hmm. with the right processes, with the right customer service, with the right product. So there are many things which have got right for, Hmm. and those things don't get right by luck. Hmm. They get right by making the right decisions based on data, based on demand, based on future projections. So I think we have done that, and probably that is the only thing which makes us apart. I really loved your vision behind this कि Tier 2 cities में और मतलब सोलो प्रेन्योर्स एंटरप्रेन्योर्स के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अपना बिजनेस रन करने के लिए, नेटवर्क करने के लिए और बैठने के लिए. तो आई थिंक इट्स मतलब वन ऑफ द मेनी रीजंस कि वाई माई सोहो इज़ लिटिल डिफरेंट. लाइक मैं अब 2 दिन को वर्किंग्स में बैठ चुका हूँ, तो आई फील कि उनके अगर किसी फाउंडर से मैं बात करता हूँ तो सबके विजन्स अलग होते हैं. तो आपका विजन अच्छा और यूनिक है. एंड आई फील वन मोर थिंग कि मेरे को लगा आप एक ये वाली बात भी बोलोगे कि यू हैव ऑल्सो लॉन्च्ड दैट माई सोहो लॉन्च पैड कि वेयर यू आर स्टार्टिंग टू फंड ऑल्सो कि अगर बिजनेस इज लाइक इफ यू आर रेडी और आप अपना बिजनेस पिच करना चाहते हो. तो आई रियली वॉन्ट टू नो अबाउट मोर. So this is, an elevation to our existing business. So इसके बारे में I'll disclose probably next month. ओके. We are right now, just pivoting to a new business, and some exciting news is just about the corner. ओके. ओके. So we are looking at building, launchpad capital workspaces across India. ओके. ओके. तो yes, कुछ चीजें हम आई बड़ी अंडरस्टैंड. करेंगे. That sounds interesting. आई अंडरस्टैंड. In your ऑफ कैमरा करेंगे वो बात. in your content, you named consistency and discipline as your success mantra. So why is that, and why do you believe these skills are like for you they matter the most? Consistency you can't beat. There's nothing. सबने बचपन में एक स्टोरी सुनी है कि पत्थर को तोड़ना या उसको कुछ भी करना is near to impossible. But when the water keeps flowing on top of it, even the sharpest of the edges just turn around. So consistency, अगर कोई consistent है ना, then intelligence, luck, anything cannot be even if they are not on your side, that's okay. Be consistent, any discipline. Just move out, wake up, go for it. This is my only life mantra. I am not the intelligence person in any room. I am not the most motivated person every day. I may have a change in vision. I may not know where I am going, or if my decision today is going to affect my life tomorrow. But only thing which has kept me, survived is consistency.
करते रहो, जो सोचा वो करते रहो, रिजल्ट 100% आता है. I heard this quote, hard volume negates luck. तो आप कोई भी चीज़ अगर 100 टाइम्स कर लो तो आपके चांसेस ऑफ नॉट सक्सीडिंग बहुत कम हो जाते हैं. राइट. आई थिंक कंसिस्टेंसी उस पर बिल्ड करने मतलब हेल्प करता है. बट पॉइंट ये है कि द शोइंग अप जो कंसिस्टेंसी में होती है कि चाहे आपको पता है आज भी कुछ नहीं होगा, चाहे वो जिम की बात हो, चाहे वो बिजनेस की बात हो, कि यार मन नहीं कर रहा आज, बट वो शो अप करना आई थिंक वो ही टफ पार्ट होता है. बट वहाँ पर आप अपने आप को कैसे पुश करते हो कि यार मन नहीं कर रहा बट आई हैव टू शो अप. कभी कभी छोटे छोटे ब्रेक्स लेना इंपॉर्टेंट है. हो जाता है कि यू नीड टू क्लियर योर माइंड व्हेन यू स्टीम्ड आउट, बट वो छोटे ब्रेक्स महीनों भर नहीं हो सकते. राइट. इट कैन बी अ डे दैट यू, ठीक है आज मन नहीं है, आज नहीं कुछ करने का मन है, एंड व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग ना, यू आर रिकवरिंग, and recovering is a part of your growth journey. So even people who are working out 7 days, and there are people who are working out 4 days, probably the people who are working out 4 days have will deliver better results, because your body also needs to recover. You also need to rest. Again, there is a debatable topic कि ये कितने घंटे काम करना चाहिए. ठीक है. बहुत कहते हैं हम 18 घंटे काम करेंगे, 16 घंटे काम करें. कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी, आउटपुट इफेक्ट होगा. सो इफ यू कीप वर्किंग, मतलब यू नीड 7 to 8 hours of sleep. If you are even delivering 8 hours of work, even 6 hours of consistent work, I will say even 4 hours of consistent work, day in day out, nothing can stop. बट इज इट द सेम एडवाइस फॉर लाइक पीपल इन देयर 20s? मतलब तब थोड़ा सा पुश ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लाइक टेकिंग रेस्ट लिटिल लेस, क्योंकि तब आपके पास एनर्जी और वो जील होती है कि आप काम कर सकते हो. बट आई थिंक वेन एवर यू गेट अ लिटिल ओल्डर तो वो चीज़ आप कम, मतलब आउटपुट नहीं निकलता इतना, चाहे वो ड्राइव हो, तो आई थिंक दैट्स द डिफरेंट केस. बट 20s में आपके पास एक चीज़ सबसे ज़्यादा होती है कि आप काम ज़्यादा कर सकते हो, मेरे को लगता है. मतलब आप हार्डवर्क ज़्यादा कर सकते हो, आप अपना वर्किंग आवर ज़्यादा लगा सकते हो. You know, again, with every passing year, there's a improvement in my thought. हमें ये लगता है कि when you're in 20s बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए, शायद मैंने भी किया हो, because I was physically fitter, mentally fitter, and उसमें उस टाइम ज़ील भी होती है. एक चीज़ जो नहीं की, so there are, what is the objective of working? First we have to understand, हमें why do we work? We work to develop income. The income eventually has to convert into wealth, right? Now we don't focus on the other streams of income. There's one stream of income which is called active income, which is when you work. तो आप जैसे मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं, या आप कहीं काम करना, आपको सैलरी मिलती है, या कोई ट्रांजैक्शन डील करते हैं, आपको उसकी कमीशन मिलती है, दैट्स योर एक्टिव इनकम. हाउ यू कन्वर्ट योर एक्टिव इनकम इनटू पैसिव इनकम, देन इनटू अ पोर्टफोलियो इनकम, वो लर्निंग कर्व अगर आपको 20s में समझ आ गई, आई स्टिल थिंक यू डोंट नीड टू वर्क मोर देन 4 hours. So it's all about how you want to build your entire life. ये मुझे नहीं अकल थी, ये चीज़ें मैंने आफ्टर द एज ऑफ 37 सीखी हैं. I will not lie about it. Till the age of 37, I was enjoying my active income, and I was able to fulfill my daily needs. But that active income was only fulfilling my daily needs. How you pivot in creating your active income and transforming that into a passive and portfolio income makes you realize that you don't need to work that much. तो वो भी हर बंदे का एक डिफरेंट है कि what is their benchmark of wealth, ये कितना चाहिए, और वो सबका डिफरेंट होता है, क्योंकि सबके फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स डिफरेंट है, सबके फाइनेंशियल नीड्स डिफरेंट है, सबका ट्रैवल एक्सपोजर डिफरेंट है. सो ये बहुत फैक्टर्स प्ले इन करते हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू वांट टू रीच, दैट व्हाट इज योर. अब जो शायद मेरा पहले गोल था, शायद मैं उसको अचीव कर चुका हूँ, अब गोल शिफ्ट हो चुका है, बिकॉज आई नो आई स्टिल कैन, एंड व्हाई नॉट. पैसिव इनकम को कैसे डिफाइन करोगे आप? मतलब So passive and portfolio income, passive income is something that you, जैसे जनरल ले टर्म में कहते हैं, you pick up a property and you start getting income out of it as rent. So that is passive income. So basically आपने अपने active income को
ट्रांसफॉर्म करके कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स डाली जो आपको एक पैसिव इनकम देती हैं, एंड साइड बाय साइड वो आपको इनकम भी दे रही है, प्लस आपकी जो रियल एस्टेट वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है टाइम बाय टाइम। ये चीज़ अगर आप सिर्फ एक्टिव इनकम को ही आप स्पेंड करते रहोगे तो वो कभी नहीं क्रिएट होगी। एंड पोर्टफोलियो इनकम होगी अगेन डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स इन मार्केट्स, investments in startups or any other companies. So there are many forms of income. Investing in crypto. There are so many. So this is how you start, investing in so many spheres and understanding that what is going to give you the best return. Now everybody does not have an appetite of investment. Then there are people who have an appetite of investment. उसमें भी फर्क ये है कि सब बंदे का रिस्क टेकिंग एपेटाइट माइंडसेट डिफरेंट होता है. सम पीपल गो ऑल इन, सम पीपल आर वेरी रिजर्व्ड कि यार स्ट्रेस है, ये मैंने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया है, मैं इसको डूबने नहीं दूंगा. सो दिस इज हाउ द डेटा ऑफ इंडिया टेल्स अस दैट प्रॉब्ली 65 to 75% के बीच में कुछ ऐसा डेटा है. Those people park their money only in fixed deposits because they feel more secure. But to be really understood कि fixed deposit में you are reducing your money. आपके पास 1 करोड़ रुपए पड़ा है फिक्स डिपॉजिट में, आपकी इन्फ्लेशन 8% 9% इतनी पे जा रही है आज की डेट में, आपको फिर एफडी में 7.5% मिल रहा है, विच यू आर नॉट रियलाइजिंग 7.5% एक्चुअली आफ्टर टैक्स इज 5.5%, 5.5%. सो यू आर नॉट इवन बीटिंग इन्फ्लेशन. सो आपका जो पैसा पड़ा है ना वो इट्स अ डिप्लीटिंग एसेट. ओवर द ईयर्स मे बी 15-20 ईयर्स वो जीरो हो जाएगा, एंड दैट इज प्रॉब्ली द टाइम यू नीड द मनी. तो ये जो द वे वी ट्रीट मनी, इफ यू कैन लर्न इन योर 20s, कैन डिफाइन द एंटायर जर्नी ऑफ योर लाइफ. कुछ लोग 50s में सीखते हैं, कुछ 60s में. आई एम ब्लेस्ड एंड थैंकफुल दैट आई कुड रियलाइज दैट एट दिस एज. मैं रिग्रेट करता था कि यार ये पहले क्यों नहीं पता था, ये अच्छी सैलरी थी तब क्यों नहीं पंगे लिए, तब तो उड़ा देते थे, फोन ले लो, ये ले लो, घूम लो, spend on the best of things. But कुछ even just 10% could have made a difference. जैसे इन्वेस्टिंग की बात चल रही है अभी, एंड यू वर ऑल्सो एन इन्वेस्टर, एंड सो लास्ट 10 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बनते हुए हमने 2021 में देखे. लाइक इट वाज 44 नंबर, उसके अलावा एवरेज पे नंबर 10 है, 5 5 4 5 20 बस. सो और आपने भी इन्वेस्टिंग 2021 में शुरू करी है, राइट? 2016. अच्छा, you are 2016, okay. All right. So, what do you think were the reasons behind the boom in startup in 2021? कि इतने यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स 2021 में क्यों बने? तो स्टार्टअप्स बनना जरूरी है, बिल्कुल, क्योंकि वो इंडिया को ना एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ पुश करता है. सेकेंडली, देयर आर सो मेनी आइडियाज which people were always people never shared. आज वो देख सकते हैं कि मैं उस आइडिया पे कुछ ना कुछ बना सकता हूँ. Technically, what is a startup? Startup is building a business which solves a certain problem and can scale. ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो भी उस स्टार्टअप सॉल्व करने की कोशिश करता है, जितनी बड़ी वो प्रॉब्लम होगी उतनी ही बड़ी वो अपॉर्चुनिटी होगी. तो गवर्नमेंट भी यही कहती है कि आपका स्टार्टअप अगर DPIIT में रजिस्टर होता है तो वो कोई बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है. इनिशियली 2015 या आप कह लो 2012 से 2020 तक इंडिया में कौन कौन से स्टार्टअप्स लोगों ने सुने थे? प्राइमरली फ्लिपकार्ट विल बी द नंबर 1 स्टार्टअप जो लोगों के जहन में आता. नाउ दोज कंपनीज were way different because they were developed by really smart and intelligent people. They knew what they were getting into. They were taking risks. They were in the right time when the technology movement in India was coming in. The consumer behavior was shifting. अभी lately इतने startups जो
अच्छा, then people started to understand that this investment can multiply into many x's. तो ये वो फोमो होना शुरू हो गया, यार ये रिस्क तो है बट अगर इसका रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है, तो पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग. देन द पैरामीटर्स ऑफ सक्सेस ऑफ अ स्टार्टअप वर बीइंग अ यूनिकॉर्न. वो एक बहुत बड़ा पैरामीटर बन गया कि यार ये यूनिकॉर्न बन गई है. यूनिकॉर्न मतलब 8,000 8,500 करोड़ की करोड़ की कंपनी. वैल्यूएशन. Now, what is valuation? Valuation technically is something what people are ready to pay for, right? But then आज वही इन्वेस्टर उस वैल्यूएशन को निगेट करता है क्योंकि वो अब कंपनी को डिफरेंट पैरामीटर्स में जज करते हैं. नाउ पहले तो प्रोजेक्शंस एंड मार्केट कैसे होगा, टोटल एड्रेसेबल मार्केट कैसे होगा, पॉपुलैरिटी कैसी होगी, वो मेट्रिक्स इमोशनल एंड फ्यूचरिस्टिक मेट्रिक्स बहुत काम आते थे. आज की डेट में द इन्वेस्टर्स क्लियरली वांट टू सी मैथ्स बिहाइंड इट, that what is the margin. They don't even talk a beta. They want to see profit after tax. Pat. Yeah. So that is the reason the number of unicorns have reduced. The investments in any startup, may it be of any scale, are now very diligent. कि it has to, अगर वो startup नहीं काम किया, there will be very brutal reasons for it, but not weird reasons. So अब वो नहीं है कि any idea can raise any money. A smart idea which is scalable, which is actually solving a problem statement, has the margin capability. The founder has that wisdom to utilize that fund in growth. तो ये सब चीज़ें factors को note करते हुए lot of investments happen now. So in 2021, like it was after COVID, first wave and second wave was going, I guess तब 2021 में बहुत मतलब आई थिंक एडटेक स्टार्टअप्स और ऐसे स्टार्टअप्स बहुत बूम हुए थे. तो हाँ, तो आई थिंक दिस वाज आल्सो रीज़न कि मतलब कोविड के बाद जब डिजिटलाइजेशन पूरा हुआ तो लोगों ने लाइक वो एक बूम आया उस पर. तो आई थिंक वो भी एक रीज़न था. और एक मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि एक रीज़न ये भी था कि फाइनेंशियल मतलब लिक्विडिटी बहुत थी मार्केट में उस टाइम पे. तो उसके बारे में आप थोड़ा हमें बता सके कि ये इट वाज ट्रू और नहीं, कुछ रीजंस और थे इसके पीछे कि 2021 में ही इतने बूम क्यों था. बाकी में तो हर ईयर में 5-6 स्टार्टअप्स ही यूनिकॉर्न बने हैं. Right. So I'm going to share what are the things in my opinion. ओके. हाँ. Right. COVID चल रहा था. Everybody was at home. Nobody was allowed to go out. So the world was changing. It was not India, it was the entire world where everybody at the same given point of time were locked inside their homes. So वहाँ पे जो digitalization हुई है worldwide, especially in India, the government has done really well in that. With that digitalization, new avenues and new business models started to develop. अगर वो digitalization ना होती तो ऑनलाइन क्लासेस वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल. ऑनलाइन क्लासेस जब होनी शुरू हुई, वहाँ पे द न्यू थॉट्स ऑफ आइडियाज स्टार्टेड डेवलपिंग कि इवेंचुअली व्हाई कांट द एजुकेशन सिस्टम बी डिजिटलाइज्ड, व्हाई डू वी नीड फिजिकल क्लासरूम्स. उस थॉट पे बहुत सारे कोर्सेस ऑनलाइन आए, बहुत सारे स्टार्टअप्स एडटेक स्पेस में आए, एंड वी हैव सीन how they really rose. मतलब इतने startups in edtech, there's Growth School. सबसे पहले तो बायजूस ही आता है दिमाग में. There's Growth School, there's GrowthX, and there's so many edtech startups which really raised money, scaled. But कहीं ना कहीं किसी startup में ना बहुत ज़रूरी है कि आप emotional business तो नहीं कर रहे. आपने सिर्फ एक फेथ रखा कि लोग ऑनलाइन ही रहेंगे एंड क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगी एंड एवरीबडी विल टेक क्लासेस ऑनलाइन ओनली. उस फेथ पे सो मच मनी वाज स्पेंट. धीरे धीरे करके इवन बायजूस स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड दैट ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ उनके ऑफलाइन सेंटर्स, बायजूस ट्यूशन सेंटर्स या ऐसे कुछ उनका बीटीसी मॉडल होता था, वो भी उन्होंने खोलने शुरू किए. So they also took that step in how we can transform a tuition center and give it uniformity. But कहीं ना कहीं उस कंपनी में there was lack of financial planning.
which led to this downfall. And उस downfall से बहुत सारे edtech startups में एक wave आई कि उनकी acceptance ना investors के mind में कम हो गई. So this is my opinion, because जो मर्जी कह लो, a human is a social animal. ठीक है, we can't only sit at home. You know, आप आज किसी आप इन्वेस्टर छोड़ो, किसी से आपने बिजनेस करना है या किसी से आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, एंड यू डोंट नो दैट पर्सन, राइट? यू विल मीट हिम ऑनलाइन, ऑन अ जूम कॉल, ऑन अ गूगल मीट. आप जितना मर्जी कर लो, यू विल नॉट बी एबल टू डेवलप अ relation can only be developed in person. So people understood that, and that is why, you know, hybrid work system started to develop. Even many companies who have given complete remote work, they insist that people to come to office once a week. If two colleagues don't meet, वो bonding नहीं बनती है. और वो bonding नहीं बनेगी जब तक वो bonding नहीं बनेगी ना, तब तक वो एक transaction है. It is a cold transaction. आज मेरी आपसे बॉन्डिंग नहीं है, आप मुझे 6 बजे के बाद फ़ोन करोगे, यार वो फाइल चाहिए मुझे, मैं प्रोफेशनली आपको आंसर दूंगा, यू विल गेट इट टुमारो मॉर्निंग. वो बॉन्डिंग होगी, मैं रात को दूंगा आपको, बिकॉज आई probably have a certain respect, care for you, and maybe I'm fond of you, whatever. That bonding cannot be online. Okay. So, Tushar, as an investor, what are your top 3 negotiables, non-negotiables before writing a check for a startup? So, you know, as an investor, first of all, I don't have the capacity to write big checks. So my capacity is anywhere between 3 lakhs to 20 lakhs. Okay. So I am not that person who's going to dictate a lot of terms. So a couple of things are non-negotiable to me. Number one, सबसे पहली बात, how do I get the vibe from the founder? क्योंकि मैंने तो फाउंडर के साथ ही कनेक्ट करना है इवेंचुअली, एंड दैट इज द पर्सन हुज गोइंग टू ग्रो द कंपनी. तो द फाउंडर हैज टू, यू नो, वो एक बॉन्डिंग बननी चाहिए फाउंडर से, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री का हो, कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो. द सेकेंड थिंग इज कि वो कर क्या रहा है एंड हाउ इज ही डूइंग इट. तो वो एक दिखना चाहिए कि एवरीबडी कैन मेक अ रॉन्ग डिसीजन, बट हाउ यू कम आउट ऑफ इट. कल आप जिस बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया हो, जिसने फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट किया था, वो तो बुक्स की ऑनलाइन बुक कंपनी थी ना, आज वो कुछ और है, क्योंकि वो पिवट किया उन्होंने टाइम टू टाइम, दे ग्रू. So it's not about which company or which product you invest your money in. It is actually the company, is the founders and the humans who are making those decisions and growing that company. तो वो connect बहुत important है. सेकेंड मेरे लिए नॉन निगोशिएबल ये है कि सपोज उस फाउंडर को स्केल करने के लिए वो एक्स अमाउंट ऑफ मनी रेज कर रहा है. अब वो क्लियरली वो पब्लिक से मांग रहा है. अगर वो कम मांग रहा है तो गलत कर रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा मांग रहा है तो भी गलत कर रहा है. ये थर्ड पॉइंट है, सपोज वो जितने उसको चाहिए उतने मांग रहा है, एंड उसने अपनी एक जर्नी बनाई हुई है कि ये से मैं ये करूँगा, उससे मेरा प्रोडक्ट या मेरा सर्विस या कहीं भी मैं पहुंचूंगा, उसके बाद प्रॉब्ली आई हैव टू रेज अगेन व्हाटएवर. तो उसका रोड मैप उसको क्लियर होना चाहिए. अगर वो एक्स अमाउंट रेज करना चाहता है, बट इन अ पीरियड ऑफ 6 months ही इज अनेबल टू रेज दैट मनी, देन योर इन्वेस्टमेंट इज रिस्की. क्योंकि आप किसी भी स्टार्टअप फाउंडर को अंडर कैपिटलाइज्ड छोड़ दोगे तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि उसके अंदर टेनासिटी हो कि वो फिर भी स्केल कर जाए. तो अगर मेरी हमेशा कंडीशन रहती है कि वट एवर अमाउंट यू आर रेजिंग, आई एम अ पार्ट ऑफ इट. इफ यू आर अनेबल टू raise the entire fund, it becomes very difficult. So then you're writing a loss. There was a philosopher in 19th century. His name was Kant. He proposed an idea. It was called transcendental idealism. It says people always view things from their experiences and from their past, and they don't see the world how it is. For example, like I was just thinking about this idea today when I was traveling. If there is a drunk
person on the road lying down there, and if in car a father and son is going, the son will say, dad, why he is lying down there, maybe we should help them. But the father knows he's a drunkard and he has a different ideology towards him. I think it's the difference of perspectives and mindset, because he has not seen the life till now and maybe the father has. I think in life as well, we gain the perspectives towards life and mindsets towards life. So you have so much experience, you have so much wisdom. How you view your life till now, and the lowest points, if you can, like, point like that was my lowest moment till now in life. How you view it and how you see things start making sense, the mindset starts to shift after that. Was it attitude, you have a different attitude, you gained different skills over there? So how was that all mapped out? अगेन बहुत ही सिंपल आंसर है इसका. जो आपने एग्जांपल दिया ना, देयर वाज अ फादर एंड अ सन एंड दे सॉ अ मैन ऑन द रोड. द सन वाज थिंकिंग फ्रॉम हिज हार्ट, द फादर वाज थिंकिंग फ्रॉम हिज माइंड. राइट, ये जो हमारे माइंड एंड हार्ट का चैलेंज डेली आता है सबको, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड कि ये इमोशनल डिसीजन लेना है कि नहीं लेना. So once you are able to control your emotions, then the decisions are more rational. तो यही है वो, आप अपने लाइफ में जितना एक्सपीरियंस गेन करते हो, जितने सेटबैक्स आते हैं, उन सेटबैक से यू कम आउट स्ट्रॉन्गर. पीपल हु डू नॉट कम आउट स्ट्रॉन्गर, दे कॉल देमसेल्व्स इन डिप्रेशन, बिकॉज वो अपने आप को निकाल नहीं पाए बाहर. पर अगर आप उसको एज अ लर्निंग लेके, इट कैन बी इन एनी फॉर्म, इट कैन बी इन लाइफ, इट कैन बी इन बिजनेस, इट कैन बी इन हेल्थ, कुछ भी हो सकता है. उस सेटबैक से आप बाहर निकालो अपने आप को, और माइंड से सोचो कि ये डिसीजन आगे लेना है, नहीं लेना, क्या करना है. सो इट्स ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन माइंड एंड हार्ट. सो द मोर यू आर एबल टू डिलीवर विथ योर माइंड, और अगर द बेस्ट डिसीजन इज व्हेन योर हार्ट एंड माइंड बोथ अग्री, देन तो देयर इज नो लुकिंग बैक. Is there gut as well? Like some people take decisions from their gut more than their heart or their brain. होता है, होता है, Is that a third component? मतलब तीन चीजों को बैलेंस करना. होता है, होता है, बिल्कुल होता है. देयर आर डिसीजंस जो एकदम से वो डिसीजंस ना यूजुअली होते हैं इम्प्रॉम्प्टू डिसीजंस. You know, you're standing at a red light and you see no one, you know, you want to, So so मतलब that is something which you just want to speed up, or any, मतलब just a weird example. You're going in a mall, you know there are limited expenses you want to do, but you see something which you really like, and you, with the gut, you feel butterflies also, you feel pain also, है ना. बट वहाँ पे बिल्कुल ब्रेन नहीं काम करता फिर आपका यार, बिकॉज यू मतलब- डोंट टेक रैशनल डिसीजंस देयर कि यार वहाँ पे कुछ को नहीं काम कर रहा, ना ब्रेन ना हार्ट. इट्स लाइक कि आई नीड टू डू दिस और यू डू दिस, बस खत्म. वो small joys of satisfaction है. And you know there's nothing wrong in it until and unless you come out of it. आप लो, purchase that. If you are looking for something which will give you happiness ना, purchase that. वो जरूर लो. But I think उसको ना एक चीज माइंड में जरूर रखो, that whatever you're buying, मतलब मैं पता नहीं शॉपिंग पे क्यों आपसे बात कर रहा हूँ, but it could be You in can. anything. You know, anything you barter in exchange of money. जब आपको गट फीलिंग आती है मुझे चाहिए, तो उसको दो कैटेगरीज में डाल दो कि इस दिस मनी व्हिच आई एम स्पेंडिंग इज अ वन टाइम यूज, ये मुझे सेटिस्फैक्शन आज ही दे रही है, या इट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू ऐड वैल्यू टू माय फ्यूचर. फ्यूचर. तो अगर वो आंसर हम कर पाते हैं, देन व्हाई नॉट. फिर वो वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट डजंट मैटर. मेक सेंस. आपने डिप्रेशन की बात करी तो टॉप ऑफ द माइंड एक चीज़ चल रही है मेरे माइंड में कि डू यू थिंक कि डिप्रेशन से एक इंसान, कोई भी इंसान डिप्रेशन में है बिकॉज दे आर ओवर थिंकिंग ऑफ देयर फेलियर्स, और मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ. तो आई फील मतलब पर्सनली कि एवरी वन हैज़ दैट कैपेसिटी टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन, मतलब एवरी वन हैज़ दैट कैपेसिटी. बट कुछ लोग नहीं कर पाते, तो फिर दे गो टू साइकेट्रिस्ट और डॉक्टर्स, और वो उस पर थेरेपिस्ट पे जाते हैं. सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट कि इट्स ओके टू गो टू अ थेरेपिस्ट, लाइक इफ इट्स हेल्प, या लाइक यू शुड कम आउट ऑफ इट योरसेल्फ ओनली, कि एंड ऑफ द डे थेरेपिस्ट भी आपको चीज़ें बताएगा तो जो हमारी हेल्प करेंगे हमको खुद को पुश करने के लिए. तो आप इसको कैसी चीज़ को देखते हो कि लाइक डू यू एग्री विथ दिस?
So I think depression is not abnormal. It is real. Why people go through it? Because either they have remained from 0 to 0 and not scaled from 0 to X, or they have scaled from X to 0, right? So they are basically over nurturing their setbacks or something they wanted to achieve, gain, which they have not been able to. तो डिप्रेशन के बहुत इलाज हैं. The first thing is your environment. Now environment is your family and friends. कि वो आपको कैसे treat करते हैं, and how that support system is there. I am blessed in that. So कहीं सेटबैक सबके लाइफ में आते हैं. आज सुबह सारा दिन अच्छा चल रहा है, जैसे फ्राइडे था, सुबह तो बड़ा अच्छा था, है ना. मैंने आई रियलाइज्ड दैट समथिंग इज नॉट राइट एंड देन आई आस्क्ड यू टू पोस्टपोन द पॉडकास्ट. सो सेटबैक्स तो आएंगे. अगर सेटबैक नहीं आएंगे वो लाइफ नहीं है. उस सेटबैक को आप कैसे एक्सेप्ट करते हो? यू कैन चूज टू गेट डिप्रेस्ड. Then you can also choose to get alcoholic because you're depressed. You True. can choose any form of venting out. So you have chosen that. Now वहां पे ना जब आप इस सिचुएशन में होते हो थोड़ा सा मेंटल कंट्रोल कम हो जाता है. तो अगेन एनवायरनमेंट प्लेज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. बट आपका अगर एनवायरनमेंट इतना सपोर्टिव नहीं है, इट्स रियली ब्रिलियंट टू गो आउट एंड सीक हेल्प. सो किसी थर्ड बंदे के नज़रिए से आपको अगर फीडबैक मिलता है एंड अगर आपको कुछ टिप्स मिलते हैं हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, देन 100% शुड गो फॉर इट. बट ये भी जरूर है किसी ने नहीं, अगर वो मेडिकल डिप्रेशन है या मुझे इतना डिटेल में पता नहीं है, कुछ चीज़ें मेडिकल हार्मोनल होती होंगी, आई डोंट नो अबाउट दैट. बट अगर बहुत सिर्फ एक मेंटल डिप्रेशन है एंड यू रियली वांट टू बी देयर डिस्पाइट being in a productive atmosphere, despite people ready to help you out, and but you choose to be there, then that's a problem. That's a big problem. हाँ. Actually, I'm asking this because like 1 year ago यहाँ पे एक मैम होते थे थेरेपिस्ट, तो शी हैज़ एन आई फॉरगॉट हर नेम. सो उनके पास लोग आते थे मतलब डिप्रेशन के, और वो तो दे यूज टू सीक हेल्प और सीक थेरेपीज वगैरह. तो आई यूज टू सी देम, और समटाइम्स मतलब उनमें से एक कनेक्शन में कोई निकला, तो आई जस्ट रियलाइज कि शी इज़ कमिंग हियर जस्ट बिकॉज कि ठीक है शी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, बस शी इज़ कमिंग हियर कि जस्ट बिकॉज टू गेट एन वैलिडेशन कि यार मैं डिप्रेशन में हूँ, वैसे हूँ वैसे, तो मेरे को चाहिए थेरेपी चाहिए. मेरे दोस्त ने भी लिया है तो उसको भी फ़र्क पड़ा तो मैं भी लूँगी ऐसे जाके. मतलब खुद आंसर नहीं निकाल रहे अपने अंदर कि क्यों डिप्रेशन है, मुझे हो क्या रहा है. दे आर जस्ट ट्राइंग टू, मतलब एक वो फैड है जो वो भी है. बहुत लगता है उसमें. वो भी है बिकॉज इससे ना खुद आपको निकलना, इट्स लाइक रिकवरी. अगर आप हॉस्पिटल में हो, इंजर्ड हो, तो अगर आप खुद ही अपने आप को डाउन फील करते रहोगे तो दवाइयों में ज़्यादा टाइम लगेगा. अगर आप खुद अपलिफ्टेड मूड में हो कि यार हो गया ना, करते हैं अपने आप को ठीक, लेट्स स्टैंड अप अगेन, तो विल, तो एक वो प्लेसिबो इफेक्ट जिसको कहते हैं ना, एक बंदे को दवाई दे रहे हो, एक बंदे को आप कुछ नहीं दे रहे हो, वो ठीक हो रहा है क्योंकि उसमें विल थी. आई थिंक वहाँ पे वही आ जाता है कि आपके पर्सपेक्टिव और माइंडसेट, आप जब आपके गुड डेज हैं तब आप कैसे बिल्ड करते हो, कि आपके बैड डेज होंगे तो आप उसको कैसे डील करो उसके उन टाइम में. वी वांटेड टू नो अबाउट 5 waters, what it teach you that maybe an MBA cannot, like running your own business, doing marketing for brands. How was that, and what were your lessons, and why you plan to shut it down? So 5 Waters is not shut down. Okay. So 5 Waters was my first company after I quit my job. So when I was working, I was in marketing only. तो जब नौकरी छोड़ी और कोई बिजनेस नहीं था तो मार्केटिंग आती थी, तो उसी में कंसल्टिंग स्टार्ट की. सो जो जैसे आप एक एजेंसी यू ट्राइंग टू बिल्ड, वी आर आल्सो अ मल्टी फंक्शनल एजेंसी, फ्रॉम क्रिएटिव टू सोशल मीडिया to strategizing their marketing and advertising spends, to helping them get media space in press and radio, to building channel partner launches, to creating BTL plans. So we used to do everything. So from conceptualizing to executing to delivering, we were doing everything. We did that from 2011 onwards.
उसके बाद again the company really was flourishing, I will say. uh, I was hardly working 4 hours a day, Okay. and it was getting into a comfort zone, and comfort zone is a pain point. तो जब वो रियलाइज हो गया, एंड वो धक्का कब लगा, जब डिमोनेटाइजेशन हुई, तो बहुत सारे कंपनीज, एंड डिमोनेटाइजेशन नवंबर ऑफ 2016 में हुआ, हाँ 16. एंड आई थिंक जून ऑफ 2017 में जीएसटी regime came in, and VAT and service tax was demolished. ये दोनों की वजह से ना many corporates started to reduce their advertising budget. तो वहां पे मैंने रियलाइज किया कि लेट्स गेट गोइंग, दैट्स अ गुड इनफ पुश. हम डिप्रेशन में कौन लोग होते हैं? डिप्रेशन में वो लोग होते हैं जो देख रहे हैं कि वो हो रहा है और देखते रहेंगे, एक्शन ही ले. एक्शन ही ले. सो बिल्कुल पीपल हु सही है. डोंट टेक एक्शन एक्चुअली, तो वहां पे प्रॉब्लम है. सो वो रियलाइज हुआ कि जो भी करना है अभी करना है, अगर अगले 2-3 साल कुछ नहीं किया, बैठे रहोगे. So you have to get up, start thinking, building. This is when I started working on my Soho in 2018. कि ऐसा कोई concept हो. And side by side, obviously, Five Waters बंद नहीं हुई थी. Five Waters was consulting to uh, many brands. So we were doing well. Five Waters को मैंने again, it's a live company right now, but we are not doing any transactions since now 2 years. But the company is live, and there is some plan which I am developing, because वो मेरी एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी थी. आई एम द सोल ओनर. सो यहाँ पे मेरा इमोशनल कनेक्ट है. सो मेरा उस ब्रांड नेम से इमोशनल कनेक्ट है. उसमें मैं बिजनेस कुछ भी कर सकता हूँ. सो दैट कंपनी विल नेवर बी क्लोज्ड. So what's your story behind Five Waters? Like अगर एक connect है तो there would be a story also सो स्टोरी behind the बहुत name. लंबी नहीं है. हाँ हाँ कोई बात. जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो सोचना था नाम क्या रखना है ना. तो सिंपल नाम रखना चाहता था. आई वांटेड टू टारगेट क्लाइंट्स इन इंडिया एंड आउटसाइड. आई वांटेड दैट रिलेटिविटी ऑफ पंजाब. तो पंजाब इज पांच दरिया, तो फाइव वाटर्स बड़ा सिंपल सा नाम समझ आया एक सी रैंडमली. Okay. एंड दिस वाज आल्सो सजेशन फ्रॉम अ फ्रेंड. Okay. So he is a designer. He has been a designer in Hindustan Times, and he suggested let's start Five Waters. So, but he wanted to join in, but he didn't. So I started the company. So company's name became Five Waters, and उसका अगर लोगो देखोगे, हमारे कंपनी का लोगो, तो उसमें एक पहाड़ बना हुआ है जिसमें there are five Five rivers. rivers. So वो एक्चुअली बाई चांस है. वो जो आइकन है ना, जो लोगो है हमारा, वो हमारी एक जमीन है हिमाचल में, चेल में, Okay. उसका ब्लूप्रिंट है. It's creative and unique. तो उसका क्रिएटिव है. Okay. मैं उसको आपका ब्लूप्रिंट दिखाऊंगा ना, वो जमीन की टोपोग्राफी है. तो वो उस टोपोग्राफी को हमने लोगो बना दिया. That is nice. That is really nice. You have worked with Hutch and Vodafone and Videocon. How was marketing then at that time, and how it has changed to today's day and age? मार्केटिंग के ना बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव, बिकॉज मार्केटिंग इज नॉट सेल्स. It is what you do today which will give you result tomorrow. The most enjoyed profile was Hutch, because that company came in as an international company. आपको याद होगा जब उनके वो पग वाले एड्स आते थे, you and I in this beautiful world. That campaign hit the world, and they did really well. They knew, see, marketing campaign का क्या मतलब है, that it has to evolve some emotion into its client. जो हच का प्रोडक्ट लेता था वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता था कि यार आई लाइक दिस ब्रांड, इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ अचीवमेंट. इट इज नॉट कंपेयर टू उस टाइम पे एस्कोटेल, एयरटेल, BSNL, उन सबसे स्पाइस, उन सबसे वो फार मोर प्रीमियम. एंड दैट प्रीमियमनेस showed in every action they took. Every detailing they did was according to that.
So yes, I've thoroughly enjoyed, and that is where the foundation of how a brand should be imagined and delivered in my mind was conceived in Hutch. Then Vodafone came in. Vodafone was more because it had bought Hutch, India's operations. So it was extremely focused. Brand building तो उनका एक worldwide था ही. So they were, apart from building a brand in India, they were here to make money and to grow their entire network. So वहाँ पे the quality of marketing was slightly, I will not say low, but not that extreme or not that aggressive जो Hutch में देखा था. Then my sudden transition was Videocon. तो वहाँ पे obviously I got an opportunity. अब हर बंदे को लगता है पैकेज बड़ा हो गया, पोजीशन अच्छी होगी, टेलीकॉम तो कर रहे हैं तो आता है, तो टेरिटरी बड़ी होगी, तो आई शिफ्टेड वीडियोकॉन में. सो आई नेवर जॉइन वीडियोकॉन. वीडियोकॉन का ओरिजिनल नाम था डेटाकॉम. ओके. सो डेटाकॉम वाज एन इंटरनेशनल कंपनी. सो उस टाइम पे डेटाकॉम गॉट, जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, डेटाकॉम गॉट अक्वायर्ड बाय वीडियोकॉन. सो इट बिकेम वीडियोकॉन मोबाइल सर्विसेज इन इंडिया. वहाँ पे आई मेट ग्रेट पीपल, बट द कल्चर ऑफ द कंपनी was something what Videocon has developed, and we all understand how Videocon, it is a successful company, but it is the culture which I could not relate to. Everybody makes money, but that culture I could not relate to, because that impact of marketing and how the brand feels about its consumer, वो I could not see. And वहीं पे मेरी इंजरी होगी. उसी स्टिंट के दौरान मेरी इंजरी हुई. So it was a clear indication. Now I can understand your story. Keep the moment. बट वो वाली मार्केटिंग जो आज सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब इन द शॉर्टर फॉर्म, मतलब वो तो यू यूज्ड टू आई गेस डू इट फॉर बिलबोर्ड्स एंड वैसी सी मार्केटिंग, और वाज इट समथिंग डिफरेंट? व्हाट वाज मार्केट योर रोल देयर in in all the in companies? telecom. telecom. Yeah. So again, marketing has two aspects. One is brand visibility, and number two is marketing is also developing the strategies and plans. अब जितने भी प्रोडक्ट्स आपने कितने सारे पोस्टपेड के प्लान सुने होंगे, इसमें ये मिलता है वो मिलता है, एंड प्रीपेड में सुने होंगे छोटा रिचार्ज, 10 रुपए का रिचार्ज, ये रिचार्ज, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं. दिस इंटायर product was developed by marketing. So the revenue onus was on marketing. Sales का काम था कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको कॉन्फ़िगर करा के डिस्ट्रीब्यूटर के पास लॉन्च करना. सो सेल्स वाज प्राइमरली डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप जितने डीलर्स अपॉइंट करोगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करोगे, जितनी मार्केट में मूवमेंट होगी, कितने लोग उस प्रोडक्ट को पिकअप कर रहे हैं. तो बट द एंड ऑफ द डे द प्रोडक्ट इज बीइंग कंसेप्चुअलाइज्ड बाय मार्केटिंग. So brand was only a part of marketing. Brand was not spending money. Brand was spending money. Marketing is not just about spending money. Marketing is earning that money and then getting a budget out of that money to spend. So it was an overall system. So वहीं पे धंधा सीखा. मतलब मैं उसको रिलेट करना चाह रहा हूँ आज के सोशल मीडिया मार्केटिंग से. हाउ? So obviously at that point of time social media was, I'm talking about 25 years ago. Social media was not there. Facebook ही 2007 में लॉन्च हुआ है, 2010 में ट्रैक्शन पकड़ी है, तो उससे पहले सोशल मीडिया नहीं था. तो उस टाइम पे मार्केटिंग वाज व्हाट वी सी ऑन ग्राउंड. एंड उस टाइम पे बिलबोर्ड्स, ऑब्वियसली बस की शेल्टर्स होते थे, एंड बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे आप विजिबिलिटी, अब बेसिकली इट वाज how you see visibility. उस वक्त हमारी स्कोरिंग होती थी टॉप ऑफ माइंड एंड इंटेंशन ऑफ परचेज. तो रैंडम डिपस्टिक्स होते थे कि आपने हमारा ब्रांड कहाँ देखा है, तो रिकॉल वैल्यू क्या है. तो लोगों के घरों के ऊपर पेंट भी होते थे, वॉल पेंट भी होते थे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स एंड कॉमन पब्लिक स्पेसेस, मॉल्स के अंदर बहुत सारी ब्रांडिंग होती थी. Zuzus भी तभी थे. Zuzus वोडाफोन के थे. Zuzu आया था, was a very fine plan by Vodafone. So Vodafone came into India in 2007. Zuzu was 2007 or 8, something like that. And Zuzu instrumental था, जो जितना मुझे याद है, it was syncing with the IPL theme.
जो मुझे जितना याद है, but I could be wrong also, don't recollect very sharply. But Zuzu was a great effort by O&M. O&M was a marketing agency for Vodafone. Hutch की and Vodafone की marketing agency was Ogilvy, O&M. Ogilvy. Okay. So आज के टाइम पे अगर आपको फिर से एक टेलीकॉम ब्रांड बनाना है तो आज क्या आप मतलब कैसे लाइक ओवरव्यू देना है कि मैं ये चीज़ें यूज़ करूंगा सक्षम और देन आई कैन क्रिएट ए टेलीकॉम ब्रांड। आज के टाइम पे टेलीकॉम ब्रांड बनाने पे अलग तरह के चैलेंजेस होंगे मार्केटिंग में जैसे पहले थे, तो आज आप कैसे उसको देखते हो अगर आज बनाना है टेलीकॉम ब्रांड एक दोबारा इंडिया में? So I say कि I really respect the approach what Jio did. ओके। Jio played the data card, right? All the other players played a different game. Jio played the anti game. सबसे पहली बात उन्होंने डेटा दिया सबको फ्री. They realized that the company that the world is moving into digitalization and इंडिया की डिजिटल adoption बहुत कम थी, अभी भी बहुत कम है. We don't know. बहुत पोटेंशियल है अभी भी. उन्होंने डेटा को अपना पावर बनाया. उन्होंने सबको एक्सेस दिया उस डेटा का फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री सिम्स देके. ओके। So they got the market got hooked to data. And after a couple of years they started charging. उस टाइम पे अगर लोग छोड़ भी गए तो भी didn't make an impact. Still they had a subscriber base, a valid paying subscriber base bigger than their competitors, which was Airtel and Vodafone. So if I have to build any brand in that sphere, I will play such a game. Okay, that is really nice. I feel you would answer about ki like I'll try to use AI also today because we are living in the world of AI. So what are your views on AI first? कि आपको क्या लगता है? AI should be used more extensively by at least entrepreneurs and founders. लोग उसको सिर्फ रेजिग्नेशन लेटर लिखने के लिए लिख रहे हैं. ठीक है, उसमें भी दिमाग नहीं लगा रहे हैं. सोशल मीडिया कॉपीज ये सब के लिए Right. भी हो रहा है. AI is extremely beneficial. And एक टर्म है हमारी मार्केटिंग में, गार्बेज इन गार्बेज आउट. Whatever you give your inputs, वैसा आपको आउटपुट निकलेगा. So AI is smart. जितना आप डिटेल्ड उसको इनपुट दोगे उतना आपको अच्छा निकलेगा. और डिटेल्ड इनपुट देने के लिए कुछ लेवल ऑफ इंटेलिजेंस तो हमें भी चाहिए अपने अंदर. बिल्कुल. तो दिस इज माय इनपुट, यूज करो, यूज इट स्मार्टली. आप कैसे अपने आप को अपडेट रख रहे हो इसमें मतलब AI में? Like you're learning something. 100%. So Okay. I try to read a lot of journals, which are not too much time consuming. And every year I try to do a short term course. There are many online courses, Okay. certifications. I try to do at least once a year, which helps me keep my mind leveled. Because जब आप एक बड़ी चीज देखते हो ना, आप हम्बल हो जाते हो. तो वो जरूरी है अपने आप को वापस नीचे लाना. तो जब देखते हो ना कि यार this the new trend, the new future, the new course is going to teach us something. So वो जरूर होना चाहिए सबके अंदर to learn. When you have the courage to accept, because जब आपके पास courage to accept होगी, that is when your imagination or your mind will be open to learn. So वो बहुत जरूरी है. That is something which keeps me grounded. कि I'm willing to learn. From office talks to true motivation to true lies to untold sacrifices to 30-minute talk to now 0 to X. You have done the seasons of podcasting. What was your top lessons as a podcaster? Lessons. So I started my podcast when I started missing my creative edge. Okay. Business sometimes gets boring, and it's not very exciting. Also, kabhi business is supposed to be boring, right? So this is something which I started to work upon, because this gives me the freedom to invite guests, spend that quality 1 hour unattended. आपके पास कोई फोन की डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं. लाइक वी आर टॉकिंग टुडे. इतनी बातें मैं किसी से शायद महीनों में करूंगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऑफिस में आता रहेगा, कोई फोन बजता रहेगा. जैसे ही कोई फोन बजेगा आपका माइंड 5 मिनट के लिए तो वहां स्विच हुआ,
So this is where I started enjoying. So yes, it is a very meaningful, impactful project for me, and I would want to keep doing it. Again, the idea is consistency. So the more consistent you and us can remain, the more we make strangers and convert them into friends. True, true. You have come across different types of human beings and you have like podcast से और आपने वैसे you were investor also और आपने इतना wide experience है आपका हर्च वोडाफोन वीडियोकॉन से लेके so what do you think कि you find कि top achievers में क्या different traits होते हैं apart from consistency और क्या traits you think कि top achievers में होते हैं हाँ just one trait you can tell So top achievers में क्या मिसिंग होना चाहिए, या नहीं नहीं सो टॉप अचीवर्स में ना इनसिक्योरिटी नहीं होती है. okay जहां पे इनसिक्योरिटी है ना, और आपकी इफ आई कैन से फटी भी हो हमेशा, तो आप सोच ही नहीं पाते आगे. that is really true तो माइंड को अपना इतना ट्यून रखो, क्या हो जाएगा. इनसिक्योर क्यों हो? We have this last segment of our show. It's called Rapid Fire, Friends in Rapid Fire combined. So we'll ask you quick questions. You have to answer in one word or maybe a sentence. Let's go. You have hosted guests on your podcast, but now you are on the other side of the mic today. What is one question that you wanted to answer but we haven't asked you? I don't know, matlab this is I've never worked on it's never thought on this. Okay. Any question that you always want to like answer but people don't ask you enough, maybe that. नहीं, I think I have answered everything. मुझसे मैक्सिमम ये लोग पूछते हैं कि भाई तुमने बाल क्यों नहीं रखे. ये यही हो सकता है, मतलब ये क्वेश्चन भी सबको पता है, मतलब यही हमने नहीं पूछा क्या नहीं, I don't know, generally people want to ask, but when I shaved off in 2005, 20 years back, that point of time there were hardly visible bald people. Now it's more acceptable. तो उस टाइम पे था, अब तो नहीं है. बस ये और कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है लोगों को. क्यों हो so Tushar if co-working gets banned what's the next thing you will build from scratch If co-working gets banned, I'll do something again in community real estate. okay do you think real estate has a huge potential 100%. okay What are your pros and cons as an entrepreneur? I am impulsive. I make fast decisions. That is the pros, that is the cons. Because when I make fast decisions, 50% can be right, 15% can be wrong. The beauty about fast decisions is, if 50% are wrong, I can take a fast decision again to improve it. pros and cons in one thing only what's one advice your future self will give you that you are not doing right now I need to stop worrying more. आज की डेट में थोड़ा सा, when you're building a business and there are multiple people attached for growth in a business, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में you start to worry. But I need to stop doing that lesser and okay enjoy and travel more. What's one best advice you have ever got in your life? Never give up. And what is one worst advice you have ever got? Ignored. For 02x what would be your dream guest जिसे आप पॉडकास्ट करना चाहो यू कैन नेम टू वन डेड और वन अलाइव Dead in life. हाँ एक डेड एक लाइफ ड्रीम गेस्ट होए कि इस साथ बैठ के मजा आएगा और मुझे भी सीखने को कुछ मिलेगा I would love to host Nikhil Kamath. निखिल का ओके I would love to know that how he is built. He must have shared 100 times. But he's also a great podcaster. And I would love to spend time and understand his business. तो वो ज़रूरी है. And so you want another guest? वन डेड if you want कि कोई बहुत पहले से किसी का he is dead now but I would love to host him if you have any name on top of your mind Actually, I will not say that. I would love to host Mr. Modi. okay see Because the podcast has to make sense
for future also. That is nice. The last question. You get a message from your today self to your younger self. What would be that message? What that would be an advice in like a 2-3 sentence? मैं अगर अपने को एडवाइस दूं टू यंगर सेल्फ ना, आई जस्ट से वन थिंग कि पुत्र जी, एक्टिव इनकम सब कुछ नहीं होती है. ठीक है, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, हाँ. स्टॉप वर्किंग सो हार्ड, है ना. सो करेक्ट योरसेल्फ, अगर बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग. अगर ये यंगर सेल्फ, आई एम नॉट लाइक लेट्स से इन योर कॉलेज वाला तुषार को आपको कोई देनी एडवाइस, तो वो क्या होगी? Again, learn more about financial Financial planning. 100%. And second is learn to cook, learn to cook. because you will eventually have to live alone kahin na kahin, and you should know how to survive alone. I think people today from this episode will take a lot from about financial advices and how you view marketing differently and your story, and everyone should be consistent because we both are also on that boat as well. Thank you for stopping by and doing this with us. It really means a lot to us. So we are grateful Thank you for this guys, and conversation. keep doing well. Thank you I so much. wish you convert more strangers into meaningful friends. Yes, I hope we converted this one. It's about you keeping in touch. Obviously, chai, coffee, scotch, and It works for me. LinkedIn, yeah. Works. so thank you so much कि आपने अपने business schedule से इतना time निकाला. Thank you. And thank you. It really means a lot to you. Thank you so much. So guys, we'll meet you in the next episode of Strangers to Friend podcast. This is Vaibhav Joshi This is- signing off. This is Saksham Narad. Take care. Bye bye.